گے، اسی دل سے ہم نہ شراب کے قریب جائیں گے، نہ ہم جوئے کے قریب جائیں گے، نہ ہم چوری کے قریب جائیں گے، نہ ہمارے قدم گمراہی اور بددینی کی طرف بڑھیں گے، نہ ہمارے ہاتھ مظلوموں پر اٹھیں گے، بلکہ ہمارے جسم کے ایک ایک اعضاء اگر اٹھیں گے تو شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں رہ کر کے ہمارا قدم بھی اٹھے گا تو گمراہی کے راستے پر نہیں، صراط مستقیم پر ہوگا، ہمارے ہاتھ بھی اٹھیں گے تو کسی مظلوم کو ستانے کے لیے نہیں، ہمارے ہاتھ مظلوموں کو سہارا دینے کے لیے اٹھیں گے، ہماری نگاہیں اٹھے گی تو فحش اور گندی چیزوں کی طرف نہیں، ہماری نگاہیں اٹھے گی تو بس یہی طرف ہوگی، یا خدا امت خضرا کا دیدار عطا کرا کے ہماری تمنا ہوگی، ہماری خواہشات پاک ہوگی، ہمارا دل پاک ہوگا، ہمارا نفس پاک ہوگا، ہمارے جسم کے ایک ایک اعضاء گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، جس دن ہم نبی کے حقیقی عاشق بن جائیں گے، خدا کی قسم جو جس سنت رسائی کی زندگی آج ہم گزار رہے ہیں، آج جو بے قیمت ہو کر کے گھوم رہے ہیں، خدا کی قسم مسلمانوں، جس دن سے ہم نبی کے سچے عاشق بن گئے، جس دن سے ہم نبی کے فرما بردار بن جائیں گے، جس دن سے ہمارا دعویٰ سچا ہو جائے گا، جس دن سے ہم صرف اعلان کرنے والے نہیں، حقیقت میں نبی کے اطاعت گزار بن جائیں گے، اسی دن سے بے قیمت نہیں پوری دنیا میں ہماری عزت ہوگی، جس راہ سے گزریں گے اسی راہ سے دیکھنے والا ہمارے لیے کرسیوں کو بچھوڑے گا اور ہمیں عزت کے ساتھ سلام کرتا ہوا نظر آئے گا، جہاں بھی جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت کے ساتھ کامیابی اور کامرانی ہم جس راستے سے بھی گزریں گے لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، ذلت و رسوائی کی نگاہ سے نہیں۔ آج ہم ذلیل و خوار ہیں، صرف اعلان کرنے والے نبی کے عاشق ہیں، صرف اعلان کرنے والے دعویٰ کرنے والے، حقیقت میں نبی کے عاشق بنو، حقیقت میں نبی کے غلام بنو، حقیقت میں نبی کی اطاعت گزار بن جاؤ۔ جس دن سے ہم حقیقت میں نبی کی اطاعت کرنا شروع کر دیں گے اسی دن سے کامیابی شروع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر اسلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونے عمل ہے، اور جس دن سے ہم اس آئیڈیل کو اپنا لیں گے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا شروع کر دیں گے، آپ کی اطاعت پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، آپ کی سنتوں سے پیار کرنا شروع کر دیں گے، اسی دن سے اللہ تبارک و تعالی کامیابی ہماری مقدم۔ لیکن ہم صرف اعلان کرتے ہیں، ہم ذلت و رسوائی کی طرف جا رہے ہیں، اسی وجہ سے ہم ذلیل و خوار ہیں۔ نبی کی محبت کیا ہے؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، ایک نام صحابی رسول میں ایک نام ملے گا آپ کو، حضرت زید بن دسنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے مکہ شریف میں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مدینہ شریف میں جلوہ افروز تھے۔ مکہ شریف میں حرم شریف سے حضرت زید بن دسنہ کو گرفتار کیا گیا اور پکڑ کر کے حرم شریف سے باہر کفار و مشرکین لے کر کے آئے حضرت زید بن دسنہ کو، اور لا کر کے میدان میں کھڑا کر دیا۔ کفار و مشرکین نے چاروں طرف سے گھیر کر کے تلواریں نکال لی، حضرت زید بن دسنہ کے گردن پہ رکھ دی۔ حضرت زید بن دسنہ سے کفار و مشرکین نے صرف ایک سوال کیا تھا، اس وقت حضرت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت ابو سفیان آگے بڑھے تلوار لے کر کے، حضرت زید بن دسنہ سے کہتے ہیں زید دیکھ رہے ہو یہ ننگی تلواریں چمک رہی ہیں، تمہارے سر کو جسم سے جدا کرنے کے لیے سارے لوگوں کی نگاہیں گھورتی ہوئی دیکھ رہی ہیں، کب تمہارے جسم سے تمہارے گردن کو جدا کیا جائے گا؟ ایسے پھر دسنا تمہارا ہم سے کوئی عداوت نہیں ہے، تمہاری ہم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی ذاتی بدلہ نہیں ہے، بس صرف اس وجہ سے تمہیں قید کیا گیا ہے کیونکہ تم نے ہمارے دشمن کو اپنا محبوب بنا لیا ہے، کیونکہ تم نے ہمارے دشمن کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اے زید بن دسنہ میں آج تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ سوال یہ ہے کہ
लेकिन सवाल से पहले मैं ये भी बता दूं कि जिस खुदा को तुम मानते हो, जिस रसूल का तुम कलमा पढ़ते हो, उसी खुदा और रसूल का वास्ता है जो आज मैं सवाल करूंगा, इसका जवाब सच सच बता देना, सही सही बता देना, क्योंकि मर तो तुम्हें वैसे ही जाना है। तो मरते वक्त तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं, जवाब सच ही देना। हजरत सैयद बिन दसना फरमाते, पूछो क्या पूछना है। हजरत अबू सुफियान उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। कहते ऐ सैयद ये बताओ, जिस तरह आज तुम हमारी कैद में हो, आज तुम्हें कैद किया गया है, आज तुम्हारी गर्दन पे नंगी तलवारें चमक रही है, धूप की तवाज़त है, आज तुम्हें इस रेत पर बिठाया गया है कत्ल करने के लिए। ऐसे बिन दसना इस वक्त जिसकी वजह से तुम्हें कैद किया गया है, वो तुम्हारा महबूब मदीने में अपने घर पे आराम कर रहा होगा। हजरत सैयद बिन दसना से अबू सुफियान ने कहा, अगर इसका बरअक्स होता, अगर तुम्हारा वो महबूब जिसका कलमा पढ़ने की बुनियाद पर तुम्हें कैद किया गया है, अगर वो तुम्हारा महबूब हमारी कैद में होता और तुम अपने बच्चों के पास आराम कर रहे होते, तो तुम्हें कैसा महसूस होता, तुम्हें कैसा लगता? ऐसा अगर तुम्हारा महबूब हमारी कैद में होता, हमारी तलवारें उसकी गर्दन पर होती और तुम अपने बच्चों के साथ आराम कर रहे होते, तो ऐसे ये बताओ उस वक्त तुम्हें कैसा महसूस होता? ये हालात तुम्हें अच्छा लग रहा है? जब वो हालात तुम्हें अच्छा लग रहा होता, हजरत सैयद बिन दसना है फरमाते अबू सुफियान से, सुन ये कहना चाहता है कि हमारा नबी तेरे कब्जे में हो और मैं अपने घर पे आराम कर रहा हूँ, और कैसा महसूस होगा? तो सुन, मैं कैद में हूँ, मेरा नबी अपने आरामगाह में आराम कर रहा है। अरे मेरे नबी को अगर मदीना शरीफ में एक कांटा भी चुभ जाए तो उनका आशिक ये भी गवारा नहीं करेगा, उनके आशिक को ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। और तुमने कैद करने की बात करता है, तो अबू सुफियान ने सर चढ़ के ऐलान किया था, ऐ कुफारो मुशरिकी, ऐ मक्का वालों सुन लो, यकीन जानो, आज तक मैंने बड़े बड़े आशिकों को देखा है, बड़े बड़े महबूब को देखा है, बड़े बड़े तालिबों मतलूब को देखा है, लेकिन ऐसे आशिक कभी नहीं देखे जैसे आशिक मदीने वाले मुस्तफा के हैं। ऐसे महबूब कभी नहीं देखे जैसे महबूब मदीने वाले सरकार के हैं, क्योंकि इनके मोहब्बत का पेवन गमों के तूफान से भी टूटने वाला नहीं है। जैसे आशिक है जिनकी मोहब्बत दुश्मनों के गर्मी से भी पिघलने वाली नहीं है। जैसे आशिक है जो मौत के मुंह में भी खड़े होकर के ये ऐलान करने वाले हैं, मोहम्मद है मधाए आलम ईमान के प्यारा, बिदर मादर बिरादर जानो माल औलाद, अल्लाह बेशक बिदर मादर बिरादर जानो माल और आज से प्यारा। हजरत सैयद बिन दसना ने पूरे माहौल में अबू सुफियान के सामने सदाकत की जबान बंद करके आपके अल्फाज ये ऐलान कर रहे थे, शराब इश्क़ अहमद में कुछ ऐसी कैफ़ मस्ती है, ये जाते कर भी एक दो बूंद मिल जाए, जाते कर भी एक दो बूंद मिल जाए तो सस्ती है। हजरत सैयद बिन दसना है मक्का शरीफ में दुश्मनों के दरमियान घिरे हुए हैं, दुश्मनों के दरमियान है, नंगी तलवारें चमक रही हैं, ढूंढती निगाहें आपके जिस्म को जुदा होने का इंतजार कर रही है। हजरत अगर ऐसे माहौल में हजरत सैयद बिन दसना चाहते कि मेरे आका तो मदीना शरीफ में है, हम मक्का शरीफ में है, ना वो थोड़ी देर के लिए मोहब्बत की कचहरी से वॉकआउट कर जाते हैं, थोड़ी देर के लिए जान बचा लेते हैं, जान बच जाए तो फिर नबी से मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। झूठ ही तो बोलना है, जान बच जाएगी। लेकिन हजरत सैयद बिन दसना ने इश्क का कलमा पढ़ा था, नबी की मोहब्बत का कलमा पढ़ा था, झूठ बोलना गवारा नहीं था। हजरत सैयद बिन दसना ने यह हरगिज़ गवारा न दिया हम झूठ बोल करके जान बचा सके, जान बचा ले, थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर की बात है। हजरत सैयद बिन दसना ने गवारा न दिया, बल्कि हजरत सैयद बिन दसना ऐलान कर रहे थे और ये कह रहे थे, ऐ मेरे जिस्म से गर्दन को जुदा करने वालों सुनो, आज मेरी जान अगर कुर्बान हो रही है, आज मेरा गला अगर काटा जा रहा है, आज अगर मुझे कत्ल किया जा रहा है, तो मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरी एक जान है, अगर मेरे पास करोड़ों जानें होती तो एक
बेशक। ये नबी की मोहब्बत है, ये नबी का इश्क है, ये नबी की अताअत है, ये नबी की पैरवी है। नबी है मदीना शरीफ में, चाहते तो जान बचा लेते, तो हजरत सैद बिन दसना ने थोड़ी देर के लिए भी जान बचाना गवारा ना किया, थोड़ी देर के लिए झूठ भी बोलना गवारा ना किया कि हम नबी से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि हजरत सैद बिन दसना ने सिर्फ नबी का कलमा नहीं पढ़ा था, नबी के इश्क का कलमा पढ़ा था, नबी की मोहब्बत का कलमा पढ़ा था। ये इस तरीके से अगर हम भी नबी के आशिक हो जाएं तो ये हाल होगा जैसे वो 313 थे, आज हम करोड़ों हैं। फर्क बस यही है, वो 313 थे, नबी के इश्क का कलमा पढ़ने वाले थे, शरीयत मुस्तफा पर अमल करने वाले थे, नबी की इताअत करने वाले थे, नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले थे। और हम करोड़ों हैं तो हम सिर्फ दावा करने वाले हैं, हम सिर्फ ऐलान करने वाले हैं, हम सिर्फ दम भरने वाले हैं। हकीकत में अगर नबी के आशिक होते तो जब दुनिया 313 का कुछ न बिगाड़ सकी तो करोड़ों का क्या बिगाड़ लेती। लेकिन आज करोड़ों को बस्तियों की तरफ ढकेल रही है ये दुनिया, तो वजह ये है कि ये 313 के मुकाबिल नहीं है, ये करोड़ों हमेशा से सिर्फ ऐलान करने वाले थे। हकीकत में इनके अंदर कुछ भी नहीं है, हमारे पास दलीलें कुछ नहीं, हम सिर्फ दावा करने वाले हैं। हकीकत में नबी से मोहब्बत करो, हकीकत में नबी से इश्क करो। जो हकीकत में नबी का आशिक होता है, अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी उसी को अता फरमाता है। इसलिए नबी से सच्ची मोहब्बत करो, क्योंकि नबी की मोहब्बत ही दुनिया में भी आपको कामयाबी दिला सकती है और कब्र व हश्र में भी नबी की मोहब्बत ही आपको काम आ सकती है। नबी की मोहब्बत ही से आप कामयाब हो सकते हैं। हजरत एक सहाबी रसूल है, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह की रवायत है। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं, एक नबी के आशिक है, एक नबी के सहाबी है जो बहुत ही मालो दौलत से गरीब थे। उनका कारोबार था जंगल से लकड़ियां काटना, बाजारों में फरोख्त करना, जंगल से लकड़ियां काटना, बाजार में बेचना, यही उनका कारोबार था, यही उनका मशगला था। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं, उनका मशगला था कि हमेशा अगरचे वो गरीब थे मालो दौलत से, अगरचे वो कुछ कारोबार बहुत ज्यादा नहीं करते थे, लेकिन उनका इश्क ऐसा था, उनकी मोहब्बत ऐसी थी। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते, हर वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा करते, हर हाल में अपने नबी पर दुरूद पढ़ते, सलाम पढ़ते। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते, वो उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, चलते फिरते, हर वक्त नबी पर दुरूद पढ़ना। जब ये बात पूरे अरब में मशहूर हो गई कि नबी के एक सहाबी है, नबी के एक आशिक है, जो हर हाल में खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते अपने नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, और ये बात जब पूरे अरब में फैली और यहूदियों को पता चला, यहूदियों को मालूम हुआ कि नबी का एक ऐसा आशिक है, नबी का एक ऐसा दीवाना है, तो यहूदियों ने मीटिंग की, एक मशवरा किया। मशवरा करने के बाद ये मामला तय हुआ कि नबी के उस आशिक को तकलीफ दी जाए, उसे परेशान किया जाए, और जब उसे तकलीफ दी जाएगी तो उसका दुरूद पढ़ना बंद हो जाएगा, नबी का इश्क कम हो जाएगा, नबी की मोहब्बत उसके सीने से निकाल दी जाए। हजरत यहूदियों ने मशवरा किया और चंद यहूदी तैयार हो गए, और तैयार होकर के पता किया वो नबी का आशिक करता क्या है। मालूम हुआ वो नबी का आशिक जंगल से लकड़ियां काट करके बाजार में फरोख्त करता है, बाजार में बेचता है, यही उसका कारोबार है। एक दिन वो सहाबी रसूल है, जंगल गए लकड़ियां काटने के लिए। यहूदी जो चंद मत तैयार हुए थे मशवरे के बाद, मीटिंग के बाद, वो जाकर के रास्ते में बैठ गए और इंतजार करने लगे, अभी वो नबी का आशिक आएगा, अभी वो नबी का सहाबी आएगा, अभी वो नबी का गुलाम आएगा, हम उसे तकलीफ देंगे, हम उसे परेशान करेंगे। ये नबी के आशिक है, जंगल से लकड़ियां काट करके लिख रखा, अपने सर पे गट्ठर बनाया और पकड़ा हाथ से और चल दिए मकान की तरफ, अपने घर की तरफ। रास्ते में यहूदी बैठे हुए थे, यहूदियों ने रास्ते
ने घेर लिया और घेरने के बाद कहा क्या तू नबी का वही आशिक है जिसका हाल ये है ला याकुलु वला यशरबु वला यजलिसु वला यकुमु हत्ता युसल्ली अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या तू नबी का वही आशिक है, क्या तू नबी का वही सहाबी है जो हर हाल में खाते पीते उठते बैठते अपने नबी पे दुरूद पढ़ता है? कहते हाँ तुमने ठीक सुना है, मैं नबी का वही आशिक हूँ, हर हाल में अपने नबी पे दुरूद पढ़ता हूँ। यहूदियों ने कहा अच्छा जरा मुझे भी पढ़ के सुना, अपने नबी पे दुरूद कैसे पढ़ता है, अपने नबी पे दुरूद कैसे पढ़ता है? नबी के आशिक थे, मचल करके दुरूद पढ़ना शुरू करते हैं और जैसे ही दुरूद पढ़ना शुरू करते हैं ज़बान अंदर और बाहर होती है। जैसे ज़बान बाहर हुई यहूदियों ने ज़बान को पकड़ा है और काट करके हथेली पे रख दिया है, खून का फव्वारा जारी हो गया। यहूदी मजाक उड़ाने लगे, अरे नबी के आशिक अब तो तेरी ज़बान कट चुकी है, अब तू अपने नबी पे दुरूद कैसे पढ़ेगा, अपने नबी पे सलाम कैसे पढ़ेगा, अब तो तेरी ज़बान कट चुकी है, अब अपने नबी पे दुरूद कैसे पढ़ेगा? मजाक उड़ाने लगे तो बज़बाने हाल नबी के आशिक ने कहा था ऐ यहूदियों तुमने ज़बान काटी है तो सोचते हो दुरूद पढ़ना बंद हो जाएगा। अरे तुमने तो अभी ज़बान काटी है, अभी मेरे जिस्म में जान बाकी है, मेरे जिस्म में जान रहेगी, जब तक मेरे जिस्म में खून का आखिरी कतरा रहेगा मेरा दिल मेरे नबी पे सलाम मेरे नबी पे दुरूद पढ़ता रहेगा। तुम चाहते हो दुरूद पढ़ना बंद हो जाएगा। अब यहूदियों ने कटी हुई ज़बान हथेली पे रख दी है और यहूदियों ने कहा ए नबी के आशिक, ए नबी के सहाबी, अब जा तू अपने नबी की बारगाह में और अपने नबी से कह दे अगर तेरा नबी सच्चा है, अगर तेरा नबी सच्चा है, अगर तेरा नबी हकीकत में खुदा का रसूल है तो अपने नबी से कह दे इस कटी हुई ज़बान को जोड़ दे। अगर तेरे नबी ने इस कटी हुई ज़बान को जोड़ दिया तो हम भी तेरे नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे, तेरे नबी के गुलाम हो जाएंगे। हज़रत वो नबी का आशिक है, कटी हुई ज़बान अपने हथेली पे रखा है और हथेली पे रखने के बाद में एक हथेली पे ज़बान को रखा है, एक हाथ से लकड़ियों के गट्ठर को पकड़ा है और चल दिए नबी की बारगाह में काशाने नबूवत की तरफ चले हैं और दिल ही दिल में सोच रहे हैं ऐ परवरदिगारे आलम जब मेरी ज़बान कट गई है तो मैं अपने नबी को हालात कैसे बताऊंगा, जब मेरी ज़बान कट चुकी है मैं अपने नबी की बारगाह में जाकर के सारी बात बताऊंगा कैसे? मैं परवरदिगारे आलम जब मेरी ज़बान कट चुकी है अपने नबी के सामने हालात कैसे बयान करूंगा, मेरे साथ क्या क्या मामलात पेश आए हैं? तो जब ये सोचते हुए जा रहे थे लेकिन हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं जब वो सहाबी लकड़ियों के गट्ठर को लेकर के और कटी हुई ज़बान को लेकर के नबी की बारगाह में पहुंचे तो क्या देखा? मेरे आका आशाने नबूवत के दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। आओ मेरे आशिक आओ, आओ मेरे सहाबी आओ, आओ मेरे गुलाम आओ, जब से तुम्हारी ज़बान कटी है तुम्हारा नबी खड़े होकर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हज़रत बताने की क्या जरूरत, नबी पहले से इंतजार फरमा रहे, कहते आओ करीब आओ और ला करके जब करीब पहुंचे कटी हुई ज़बान हथेली पे है, मेरे आका फरमाते घबराओ मत, अगर तुम मेरे आशिक हो मेरी इश्क में ज़बान कटवाना जानते हो तो मैं भी तुम्हारा नबी उस कटी हुई ज़बान को जोड़ना जानता हूं। मान अल्लाह बेशक बेशक मान अल्लाह। फरमाते लाओ करीब लाओ, कटी हुई ज़बान हथेली पे है, नबी की बारगाह में हाजिर है, सामने ज़बान को किया, कटी हुई ज़बान को हथेली पे रखे, सामने हथेली को किया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उंगली का इशारा करते हैं और जैसे ही उंगली का इशारा करते हैं कटी हुई ज़बान हथेली से उठती है और मुंह की तरफ चलती है, अपनी जगह की तरफ बढ़ती है। हज़रत जब यहूदियों ने ज़बान को काटा था तो ज़बान से दुरूद मुस्तफ़ा के अल्फाज जारी थे और जब मेरे मुस्तफ़ा ने इशारा किया वो कटी हुई ज़बान हथेली से उठी है तो खामोश नहीं है, अब भी उस ज़बान से दुरूद मुस्तफ़ा के अल्फाज जारी है। अब यहाँ पे एतराज़ भी हो सकता है, एक सवाल भी हो सकता है, जब कटी हुई ज़बान थी तो बोल कैसे रही थी? अगर जिस्म से कोई जिस्म का आधा कट के अलग हो जाए तो उससे ताकत खत्म हो जाती है, उससे जान खत्म हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर पैर को जिस्म से काट के अलग कर दिया जाए चलने की ताकत खत्म हो जाएगी, हाथ को जिस्म से काट करके अलग कर दिया जाए पकड़ने की ताकत खत्म हो जाएगी, ज़बान को जिस्म से काट के अलग कर दिया जाए कुव्वत गोयाई बोलने की ताकत खत्म हो जाएगी, आँख के ढेरों को निकाल के
जबान थी हथेली से उठी थी तो उस पे बोलने की ताकत कहाँ थी, वो दुरूद पाक कैसे पढ़ रही थी, उसमें बोलने की साइकिल कहाँ से आई, तो इसका जवाब 1400 साल पहले मैदान करबला से सन 61 हिजरी में इमाम अली मकाम ने दिया था। अपनी गर्दन को कटा करके अंधे से पर कुरान की तिलावत करके सरे इमाम अली मकाम जमाने को पैगाम दे रहा था, ऐ जमाने वालों जो चीज मुस्तफा की मोहब्बत में कल जाए वो मरती रही, अल्लाह उसे हकीकत में असली जिंदगी अता सुभान अल्लाह, बेशक बेशक अल्लाह उसे हकीकत में असली जिंदगी अता फरमा देता है। और वो ज़बान किसी और के लिए नहीं मुस्तफा की मोहब्बत में कटी थी, और जो चीज मुस्तफा की मोहब्बत में कटे वो बेजान नहीं होती, अल्लाह उसी को जान अता करता है, उसी को असली हकीकत जिंदगी अता करता है। फिर वो ज़बान उठी दुरूद मुस्तफा पढ़ते हुए अपनी जगह पे जा करके लगी, और जब वो ज़बान अपनी जगह पे जा करके लगी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाते अपने सहाबी से, उस आशिक से, ऐ मेरे आशिक कहाँ गए थे, क्या करते हो? अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह आपका सब जान